Hello aspirants, welcome to IS Mentorship. I welcome you all to the next lecture, that is your lecture number 7 of Geography class 6. So till now we have completed all the lectures till lecture number 6 very comprehensively. If you have not watched the video, go and watch it. Different playlists have been created. Geography का अलग playlist बन चुका है and after geography for different subject another playlist will be created. So before watching this video, I will request you all to go and watch our YouTube channel IS Mentorship. There all the video lectures have been uploaded in the playlist. Okay. So in today's lecture, chapter number 7 we are going to do, and this is about our country, India. So let us move ahead with the topic and try to understand what is in chapter. So basically, if we try to consider it as per the NCERT book of class 6th, not much information has been given. But although whatever it is there, we will try to understand it in a very detailed way. Clear? As we know that India is a very beautiful country and has a vast geographical expanse. Clear? Now let us try to understand some of the good and important fact about our country. It's the 7th largest country in the world and having the area of 3.28 million square kilometers. Clear? Now your homework is that you have to find out what are first 6 countries. India is holding the position of 7th largest in terms of largest. Now you need to find what are the first 6. Clear? The north-south extent from Kashmir to Kanyakumari is 3,200 kilometers and the east-west extent is 2,900 kilometers, which means that our north to south extent is more than our east to west. Now let us try to understand what I have told you here. So this is our India map if we try to draw it. So what it is saying, basically it is saying that the north-south extent, that is your from here to here, is your 3200 kilometers, and if we talk about east-west, this is your 2900. So always remember that our north-south extent is more. Clear? Fine. Now let us move ahead. In the previous chapter, we have learned that there are various diversity of landforms such as mountains, plateaus and plains. इसीलिए मैं बोली हूँ कि ये चैप्टर पे आने के पहले आप चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 6 तक आप कर लीजिए, क्योंकि इसमें जो वर्ड्स हैं जैसे landforms हो गए, that we have completed in the previous chapter, such as mountains, Great Indian Desert, Northern Plains, uneven plateau, etc. In the northern part, we are bounded by lofty Himalayas. In the south is Indian Ocean. ठीक है? In east it is Bay of Bengal. And in the west there is Arabian Sea. So you should be knowing these facts. Now, it is the most populous country after China. Now this point is old point. Update it with the recent news. Updation क्या करना है? Now India has surpassed China in terms of population. Now it is not second most, but it is most populous country. नंबर 1 पे आती है. ठीक है, ये ओल्ड डेटा है, इसको आप अपडेट करेंगे. ठीक है, मतलब कि अब पॉपुलेशन में इंडिया सबसे पहले आता है, उसके बाद चाइना आता है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और यहाँ पे आप इसको अपडेट करेंगे. क्लियर? नेक्स्ट, before going ahead, this is our mentorship program. You should be knowing about this. For any query, do give a call on this number. Here number is written and our senior mentor, that is Riyasat Ali sir, will guide you for all your queries. And this is your test series program also. You can also join this test series. All the details are given in the slide. You can pause and have a look. And for any further queries, you can give a call on this number. Batch is starting from 19th June. So now let us move ahead with the next topic, that is your location setting of India. Basically, if we try to understand that where India is located, it is located in the northern hemisphere. आपको समझ में आ गया होगा northern और southern hemisphere क्या होता है. ये मैं अगर अपने अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करूं, this is my northern and this is my southern hemisphere. Clear?
द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू द कंट्री। क्या बोला जा रहा है, जैसे ये मेरा इंडिया है, इफ दिस इज माई इंडिया, क्लियर, ये मेरा इंडिया का मैप मैं ड्रॉ कर रही हूँ, एंड एज बीइंग एन आईएएस एस्पिरेंट यू शुड बी नोइंग हाउ टू ड्रॉ इंडियाज मैप। तो ये बोल रहा है कि यहाँ पे ऑलमोस्ट ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारी पास होती है। अब आपको पता होगा कि ये हमारा अगर अर्थ है, ये इक्वेटर है, दिस इज योर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से पास हो रही है, दिस इज योर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये यहाँ से पास हो रही है, दिस यू शुड बी नोइंग, क्लियर। लैटिट्यूड एक्सटेंड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, द मेनलैंड एक्सटेंड आपका दिया हुआ है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड पे है, क्लियर। ये आपका याद करने की जरूरत नहीं है, बट रफ आपको एस्टिमेट होना चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ कि फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ बोला जा रहा है, मतलब कि यहाँ पे आपका 8 डिग्री 4 है और यहाँ पे आपका 37 डिग्री 6 मिनट है, ये आपको पता होना चाहिए। अब अगर ईस्ट वेस्ट की बात करूं, वेस्ट ईस्ट की, तो वेस्ट में है हमारा 68 डिग्री 7 मिनट और आपका ईस्ट में है 97 डिग्री 25 मिनट, ये यही बोल रहा है, ठीक है, ये आपका फैक्ट दिया हुआ है, तो यू शुड बी knowing. Due to great longitudinal extent of about 29 degrees, the difference between 2 points would be of 2 hours. Longitudinal extent, longitude क्या होता है, ये वाला extent, ठीक है, ये आपका 29 डिग्री के करीब है। देखिए ये 8 है, 37 है, अगर आप इसको बीच का डिस्टेंस निकाले तो अराउंड 29 डिग्रीज आएगा। वही बोल रहा है कि इतना ज़्यादा डिस्टेंस होने की वजह से कश्मीर टू कन्याकुमारी, यहाँ द northern and the southern point, that is why it will be the difference of nearly 2 hours. We know that 4 minutes is 1 degree, right? Understood? ठीक है, तो यही आपको बोला गया है। लोकल टाइम इंडिया का मैंने आपको बताया था चैप्टर 2-3 में कि 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट हैज बीन टेकन, मतलब कि यहाँ पे ये वाली जो लाइन पास होती है, यहाँ पे जो ये वाली जो लाइन है, ये आपका 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पे सेट हुई है, क्लियर। एंड बिकॉज ऑफ द डिफरेंस बिटवीन ईस्ट वेस्ट लैटिट्यूड, आपका सन जो है ऑब्वियसली पहले राइज कहाँ होगा, नॉर्थ ईस्ट में, दैट इज योर अरुणाचल प्रदेश एज कंपेयर टू वेस्ट, बिकॉज सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, क्लियर। सो दीज आर सम important points you should be knowing. Next, let us try to understand about India's neighbor. As you can see, this is our map here. This is your north, this is your south, this is your west, and this is your east. There are 7 countries that share land boundaries with India, clear? So there are 7 countries that share land boundaries with India. This is your India, as you can see. अब वो कौन कौन से 7 countries है वो we will try to understand. It is very important. First is your Pakistan, ये पूरा नॉर्थ वेस्ट आपका, एंड द लिटिल पोर्शन हियर आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आपका अफगानिस्तान भी घेरा हुआ है, पाकिस्तान अफगानिस्तान ये हो गया आपका। थर्ड इज योर नेपाल, फोर्थ योर भूटान, ठीक है, चाइना, देन योर म्यांमार और आपका बांग्लादेश, ठीक है। 7 कंट्रीज हो गई, 7 कंट्रीज जो है शेयर करती हैं लैंड बाउंड्री। अब आप बोलोगे कि मैम श्रीलंका भी तो शेयर करती है, यस एग्जैक्टली, श्रीलंका ऑल्सो शेयर, बट इट डजंट शेयर द लैंड बाउंड्री विद इंडिया, इट शेयर्स कोस्टल बाउंड्री विद इंडिया, रिमेंबर दिस पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो लैंड बाउंड्री की अगर बात हो तो ये आपके 7 कंट्रीज आएंगे, बट श्रीलंका शेयर्स कोस्टल, नॉट लैंड। लैंड से कहाँ जुड़ा हुआ है, देखो नहीं है ना, ये सब आपके लैंड से जुड़ा हुआ है, ठीक है। So this is very important fact. Next, political and administrative divisions, ये आप देख सकते हो, ये आपका फिजिकल मैप है जहाँ पे पॉलिटिकल अलग अलग रीजन्स डिवाइडेड नहीं है। ये आपका ये आपका फिजिकल मैप है, दिस इज योर फिजिकल मैप, यू कैन सी, यहाँ पे आपको अलग अलग रीजन्स नहीं दिखेंगे, बट यहाँ पे आपको ईच स्टेट वेल डिफाइंड कलर्स में दिख रहा है, दैट इज वाई दिस इज योर पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स. And as we know that as per present status, India is being divided into 28 states and 8 union territories. Now this is your homework which I have told you, written here as per NCERT.
You need to find which is the largest state and also which is the smallest state in India. Clear? Very important. You need to find it. Okay, largest and smallest, and you should be giving the answer in the comment section below. Clear? Fine. Now this is your physical division as we can see on the map. इसमें फिजिकल फीचर्स डिफाइंड है, जैसे आपका माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, कोस्टल आइलैंड्स एंड एटसेट्रा हो गए. देखते हैं, लेट अस ट्राई टू जूम इट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. ये आप ध्यान दीजिए ये मैप में, ठीक है. दिस इज योर फिजिकल मैप ऑफ इंडिया. यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका हिमालयाज है. लेट मी टेक अ डार्क कलर. दिस इज योर हिमालयाज, ग्रेट हिमालय, शिवालिक, नदर्न प्लेन्स. ये आपका विंध्या रेंज है माउंटेन का. दिस इज योर सतपुरा रेंज, राइट, दिख रहा है. ओके, ये आपका सतपुरा रेंज हो गया. दिस इज योर इंडियन डेजर्ट, राइट, दिस इज योर इंडियन डेजर्ट. और उसी के नीचे, इंडियन डेजर्ट के नीचे आपका क्या है, अरावली रेंज, माउंटेन रेंज अगेन. एंड नाउ दिस इज योर डेक्कन प्लेट्यू, दिस इज योर वेस्टर्न घाट्स रीजन, दिस इज योर ईस्टर्न घाट्स रीजन. ये हम एक एक चीज को लेके फर्दर क्लासेस में वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ दे हैव फॉर्म्ड एंड व्हाट आर द important features of each and everything. Don't worry. So this is your physical features showing your mountains also and showing your plains also. Northern India plain, साउथ ऑफ हिमालयाज में ये आपका हिमालयाज है, उसके साउथ में क्या आते हैं, प्लेन्स आते हैं, ठीक है, प्लेन्स आते हैं. नेक्स्ट, ग्रेट इंडियन डेजर्ट लाइज हियर टू द वेस्ट ऑफ इंडिया. पेनिनसुलर प्लेट्यू लाइज टू द साउथ ऑफ नदर्न प्लेन्स. ये आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू है पूरा, ठीक है. ये आपका नदर्न प्लेन है, देखिए आप, ये दिख रहा है, ये नदर्न प्लेन्स. ये इसके साउथ में क्या आता है, पेनिनसुलर प्लेट्यू आता है. अरावली हिल्स, वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेंज. हमने पढ़ा था कि दिस इज योर ओल्ड फोल्ड माउंटेन. जिसने भी चैप्टर 6 पढ़ लिया होगा वीडियो से, उसको समझ में आ गया होगा व्हाट इज योर ओल्ड फोल्ड माउंटेन. अरावली इज आवर ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स. ये नॉर्थ वेस्ट, ये वाला, ठीक है. दिस इज योर अरावली. सो दिस इज योर फिजिकल फीचर ऑफ इंडियाज मैप. रिवर नर्मदा एंड तापी हमको देख सकते हैं, दे आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर. ये आप देखिए यहाँ पे, इफ आई जूम, यहाँ पे आपको तापी रिवर दिखेगी, देखिए, ठीक है. दिस इज योर तापी, दिस इज योर नर्मदा रिवर. फाइन. नेक्स्ट, व्हाट इट इज सेइंग, वेस्टर्न घाट्स और सह्याद्रीज बॉर्डर द प्लेट्यू इन द वेस्ट एंड ईस्टर्न घाट्स प्रोवाइड ईस्टर्न बाउंड्री. ये आप देख सकते हो, ये वेस्टर्न घाट्स है, ये वाला, ये आपका ईस्टर्न घाट्स है, राइट, ठीक है. नेक्स्ट, व्हाट इट इज सेइंग, इट इज द वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स एंड द ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट्स लाई द कोस्टल प्लेन. क्या बोल रहा है कि ये जो अगर हमारा वेस्टर्न घाट्स है उसके वेस्ट में कोस्टल एरिया है, ईस्टर्न घाट है उसके ईस्ट में कोस्टल एरिया, ठीक है. कोस्टल मतलब एकदम कोस्ट से लगा हुआ, ठीक है, तट पर. क्लियर? सो देयर आर नंबर ऑफ ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स सच एज महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, जो बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होते हैं, ठीक है. ये देख सकते हैं आप, ये महानदी रिवर हो गया, है ना, ये आपका कावेरी रिवर हो गया. क्लियर? गंगा रिवर इज ऑल्सो ड्रेनिंग इन द बे ऑफ बंगाल. यहाँ बे ऑफ बंगाल में आके गिर रही हैं सारी रिवर्स, ठीक है. और यही रिवर्स जब गिन रही है तो व्हाट दे आर मेकिंग, दे आर मेकिंग डेल्टा. नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड डेल्टा होते क्या है इन फर्दर क्लासेस. बस आप इतना समझ लीजिए कि एक रीजन है जो बहुत फर्टाइल है. द लार्जेस्ट डेल्टा इज सुंदरबन डेल्टा, जो गंगा ब्रह्मपुत्र के फ्लो से बे ऑफ बंगाल में बनता है. अब यहाँ से गंगा आ रही है, यहाँ से ब्रह्मपुत्र आ रहा है, ठीक है, आ रही है. बोथ रिवर्स आर कमिंग एंड दे आर ड्रेनिंग इन द बे ऑफ बंगाल, और यहीं पे आपका सुंदरबन डेल्टा बनता है. And it is very fertile because rivers are bringing along with them nutrients, minerals. So that is why a fertile land is being made because of the drain of rivers. Clear? So this you need to know. This we have understood. Next, we should be understanding about the Himalaya. Very important in the loftiest mountain. ठीक है. And the word Himalayan is derived from him then ale. Him plus ale, that is your abode of snow, cloud of snow. ठीक है, cloud of snow, place of snow, इसीलिए इसको हिम आलय, हिमालय बोलते हैं.
दे आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन पैरेलल रीजन्स। जैसे ये आपका हिमालय है, ये 3 रेंजेस में डिवाइडेड है। अब आपको समझ में आ गया होगा रेंज क्या होते हैं, सीरीज ऑफ माउंटेन्स इन ए स्ट्रेट लाइन। फर्स्ट वन इज योर हिमालय और हिमाद्री, ये वाले को क्या बोल रहे हैं, ग्रेट हिमालय या फिर हिमाद्री, ठीक है। सेकेंड वाले को मिडिल हिमालय और हिमाचल बोलते हैं, थर्ड वाले को शिवालिक। नाउ इफ आई ट्राई टू जूम हियर, सी दिस इज योर ग्रेट हिमालय, दिख रहा है आपको, ग्रेट हिमालय, ओके, दिस इज योर ग्रेट हिमालय, दिस इज योर शिवालिक, यू कैन सी हियर, क्लियर। तो ये आपके 3 मेन इंपॉर्टेंट डिविजन्स हैं, 3 मैंने आपको बताए, ठीक। ये है 3 पैरेलल रेंजेस है, ग्रेट हिमालयस, मिडिल हिमालयस और शिवालिक्स। ग्रेट हिमालयस को हिमाद्री भी बोलते हैं, मिडिल हिमालयस को हिमाचल बोलते हैं, बिकॉज इट इज कवरिंग द रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश एज वेल। Clear? You should be knowing about this. Now, what do you mean by islands? Islands are those land which are in the ocean or in the water body. Clear? अब इंडिया के कितने आइलैंड है, इंडिया के 2 मेन आइलैंड है, लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपके अंडमान आइलैंड दिख रहे हैं, यहाँ पे आपके लक्षद्वीप आइलैंड है, दीज आर ऑफ इंडिया, दे आर लाइंग इन द इंडियन ओशन रीजन, दिस इज योर अंडमान and this is your Lakshadweep. Clear? Important one है, आपको पता होना चाहिए। So basically लोकेशन की बात करें तो लक्षद्वीप आइलैंड, दिस वन इज इन अरेबियन सी, केरला कोस्ट ये है, ये वाला केरला आता है, यहाँ पे केरला स्टेट के आपके वेस्ट में पड़ेगा। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड बे ऑफ बंगाल साइड में, दिस इज योर बे ऑफ बंगाल एंड दिस इज योर अंडमान, दिस यू शुड बी नोइंग, वेरी इंपॉर्टेंट। So I hope it is clear to you what is island basically. Islands are those patches of land which are surrounded by water body. India is having 2 islands, Lakshadweep and Andaman. So this is all for the chapter number 7. हमने यहाँ पे chapter number 7 कर लिया, our country India. And in the next coming chapter, which will be the last chapter of this geography class 6, okay, वो हम कर लेंगे and then we will be moving to the next subject. Let us see what we are going to take, either civics or economics. So with this I am ending my lecture. I hope you liked it. Do give the feedback in the comment section.